Today we are going to start with chapter number 10, The Gift of the Magi. $1.87. This was all, and 60 cents of it was in pennies. $1.87 बस यही सब है, इसमें से 60 सेंट तो पैसों में थे. Penny saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one stick burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. तो क्या है कि 1 और 2 पैसे बचाकर वो क्या करती थी, ग्रोसर, सब्जी वाला और मांस वाले को धक्के मारकर वो क्या थी, एक कड़े निश्चय करने के लिए कुछ एक पैसे बचाती थी. 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. क्या था, उसने इन पैसों को 3 बार गिना कि वो पैसे बचाना चाहती थी. एक चीज में से वो जिसको भी पैसे देती थी वो सोचती थी उसमें थोड़े थोड़े पैसे बचा लें, तो इसीलिए उसने अपने पैसों को 3 बार गिना. $1.87. और नेक्स्ट डे अब क्रिसमस था. There was clearly nothing left to do but drop down on the shabby little couch and hole. So Della did it. तो क्या था, अभी उसके पास कुछ भी नहीं था इसमें करने के लिए, क्रिसमस एव पे करने के लिए. तो अभी डेला क्या करेगी? What instigates the moral reflection that life is made up of soap, sniffs and smiles, with sniffers predominating, while the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second. Take a look at the home, a furnished flat at $8 per week. तो उसका जो फ्लैट था, जो फर्निश, उसका रेंट क्या था? $8 per week. It didn't exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the Mangasini spread. In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger would coax a ring. Also appertaining to was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. तो उसके पास जो एक पत्र था उस पर किसका नाम था? मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग का नाम था. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its prosper was being paid $30 per week. इस चीज के वो $30 per week पे किया करती थी. Now when the income was shrunk to $20, और अब ये इनकम जो थी उनकी बढ़कर $20 में श्रिंक हो गई थी. The letters of Dillingham looked blurred as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming. But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. तो उसके बाद मिस्टर डिलिंगम जो हैं जब अपने घर आए, वो अपने फ्लैट तक पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिम को बुलाया और अपनी मिसेस जेम्स डिलिंगम को उन्होंने क्या करा? हग किया, गले से लगाया. और इसके डेला के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि बहुत अच्छी थी. Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder tray. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. तो क्या था कि अभी डेला जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे क्रिसमस एव के लिए, जिनके लिए गिफ्ट खरीदना था. Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. तो अभी क्या है, इसको पता था कि कल क्रिसमस है, लेकिन उसके पास केवल इतने पैसे हैं जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए, जो कि इनफ नहीं है, उसे और बहुत सारे पैसों की जरूरत थी. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go for. तो क्या है, $20 उसे और चाहिए थे केवल एक सप्ताह में उसे
$20 और चाहिए थे जो कि उसके पास नहीं थे। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटेड, तो उसने कैलकुलेट किया तो उसके जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। दे ऑलवेज आर ओनली $8.87 to buy a present for Jim. Her Jim many a happy hour she had spent planning for something nice for him. तो अभी क्या है कि वो जिम के साथ कुछ अच्छे खुशी के घंटे बिताना चाहती थी, लेकिन क्या था कि उसको एक अच्छा प्रेजेंट देना था जिम को, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे उसका प्रेजेंट खरीदने के लिए। Something fine and rare and stealing something just a little bit near to being worthy of the honor of being on by Jane. There was a wire glass between the windows of the room. Perhaps you have sent a wire glass in an $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtained a fairly accurate conception of his looks. Taylor, being slender, had mastered the art. तो क्या है, अभी टेलर को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने एक स्कीम सोची कि वो उसे अभी कुछ करना चाहिए। Suddenly, she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. अचानक से उसने क्या किया, जैसे ही विंडो के बाहर देखा और उसे ग्लास को देखा तो उसकी आंखें जो थी एकदम बहुत ही सुंदर चमक रही थी, लेकिन उसका जो फेस का जो कलर था वो एकदम गायब हो गया था कुछ ही सेकंड्स में कि फेस पे वो चमक नहीं थी। और उसने देखा उसके बाहर कि उसके बाल जो थे वो एकदम फुल लेंथ में एकदम लंबे थे, बहुत बड़े थे। नाउ there were two positions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. क्या था कि जेम्स के पास एक गोल्ड वॉच थी जो उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर ने उसको दी थी। The other was Dela's hair. तो लेकिन डेला के पास क्या थे, उसके बाल थे। Had the queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Dela would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate her majesty's jewels and gifts. तो क्या है, वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए अब उसके दिमाग में क्या है कि वो अपने बाल जो है वो कटवा के बेच देगी। Had King Solomon been the janitor with all these treasures filled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his weird front angle. So now Dela's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. तो क्या है कि जो बेला के बाल जो थे वो गिरने वाले थे, वो टूटने वाले थे, उसके बाल जो थे वो एकदम शाइनी थे, चमकीले थे, बहुत ही सुंदर थे। It reached below her knee and made itself almost a garment for her. तो क्या है, उसके बाल जो थे एकदम घुटनों तक थे और वो कुछ भी पहनती थी तो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर लगता था। And then she did it up again nervously and quickly. अब वो बहुत ज़्यादा नर्वसली थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. On went her old brown jacket, on went her old brown hat. अब उसने क्या था, एक पुरानी बुरी जैकेट पहनी हुई थी और क्या एक पुरानी बुरी टोपी पहनी हुई थी। With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she thundered out of the door and down the stairs to the street. अब वो नीचे उतर के आ रही थी, उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और क्या था कि वो उसकी आंखों में एकदम परेशानी झलक रही थी। Where she stopped the sign read, "Mermaid, software, hair goods of all kinds." One sight of Della ring and collected herself painting. उसके बाद डेला ने क्या किया, जैसे वो नीचे आई तो उसने कुछ पेंटिंग कलेक्ट करनी शुरू की। Madam, last two white chili hardly look the saffron. Will you buy my hair? Asked Della. तो अभी क्या है, डेला उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बाल खरीद लोगी। I buy hair
सेड मैडम। तो मैडम ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे बाल खरीद लूँगी। टेक your hat off and let's have a sight at the looks of it. Down rippled the brown cascade, $20, said madam. उसने पूछा कि आप मेरे बालों के बदले में मुझे कितना पे कर सकती हो। उसकी मैडम ने कहा वो उसको $20 पे कर सकती हैं। Lifting the mask with a practiced hand, give it to me quick, said Data. क्या है, उसके बाद से हाथ मसलते हुए उनसे पूछा कि तुम ठीक है मुझे $20 दे दो, और अभी डेला बोलती है ठीक है मुझे जल्दी से पैसे दे दो। Oh, and the next 2 hours trip by and Rosie Bings forget the haste metaphor. She was ransacking the stores for Jim present. उसके बाद उसने क्या किया, 2 घंटे मतलब जैसे ही वहाँ से उसने वो पैसे लिए वो 2 घंटे में वहाँ से गायब हो गई, और वो जल्दी से वो सब कुछ भूल गई कि इसके बाल कट गए हैं कुछ भी है। इसके बाद वो जल्दी से एक जिम का प्रेजेंट लेने के लिए एक अच्छे से स्टोर पर चली गई। She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. तो क्या है, फाइनली उसको एक प्रेजेंट समझ में आ गया उसके लिए। तो जैसे ही उसको प्रेजेंट मिला तो वो समझ गई कि ये ज़रूर जिम के लिए बना है और बाकी किसी और के लिए नहीं बना है। There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. तो क्या है, ने उस प्रेजेंट को देख के उसे लगा कि ऐसा प्रेजेंट ऐसा गिफ्ट जो है और किसी भी स्टोर पर नहीं मिल सकता, और उसे लेकर वो वहाँ से बाहर आ गई। इट वॉज अ प्लैटिनम फोक चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन प्रॉपरली, proclaiming it value by substance alone and more by mysterious ornamentations as all good things should do. तो क्या है कि ये एक प्लैटिनम फोक चेन थी जिसका डिजाइन जो था बहुत ही सुंदर था, तो वो क्या था उसको वो लेकर वहां से आ गई। इट्स वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। तो क्या है कि ये उस वॉच से भी बहुत ज़्यादा वर्दी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। एज सून एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। जैसे ही उसने उसको देखा तो वो जान गई थी कि ये जिम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उस प्रेजेंट को देखते ही उसे समझ में आ गया था कि ये प्रेजेंट जिम के लिए बेस्ट है। इट वॉज लाइक हिम, ये उसको बहुत पसंद आएगा। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ। तो क्या है, इसकी शांति उसको उसके बारे में क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन उसको देने की जरूरत नहीं है, ये सब उसको खुद ही समझ में आ जाएगी। $21 they took from her for it and she hurried home with the 78 cents. अभी क्या है, वो अपने 78 cents के साथ वापस घर आ गई। with that chain on his watch might be properly and sizes about timing and company. When as the watch was, he sometimes looked at it one of the slide on account of the old leather strap that he used in place of a chain. उसे लगा कि जब कहीं भी उस चेन को यूज करेगा तो उसको समझ में आएगा, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। When Dana reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the rivets made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. तो ये क्या था, ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था। तो कि उसने किया, उसने अपने बाल कटवा के अपने उसके लिए प्रेजेंट लिया जिम के लिए, अपने भाई के लिए। तो वो क्या था, ये उसके लिए एक प्यार और एक अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, जो जिसके लिए उसने उसके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-line curls that made her look wonderfully like a trained schoolboy. क्या है, केवल 40 मिनट्स में उसके जो बाल वो थे हैप्पी उससे कर्ली हेयर से वो है भरे गए थे, जिससे कि वो स्कूल में जा सकते हैं। She looked at her reflection in the mirror, looked carefully and critically. तो उसे अपना रिफ्लेक्शन जब मिरर में देखा तो क्या था कि उसको मतलब उसके लिए बहुत ही क्रिटिकली था। If Jim doesn't feel me, she said to herself,
Before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island कोर्स गर्ल्स। तो उससे कहा कि उसने जिन से कहा कि तुम एक बार देखो मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसने एक सेकंड के लिए उसे देखा और उसने देखा तो उसके लिए उसने बोला कि तुम एकदम पोनी आइलैंड कोर्स गर्ल्स की जैसी दिख रही हो। बट what could I do? Oh, what could I do with $1.87? क्या है कि अब वो क्या कर सकती है, अब इनके के साथ क्या कर सकती है, $1.87 के साथ क्या कर सकती है। At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove pot and ready to cook the chops. Jim was never late. Jim कभी भी लेट नहीं होता था। Dina doubled the fork stand in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. तो डेला जो थी उसने वो चेन को डबल फोल्ड किया हुआ था अपने हाथ में और उसने उसको वहाँ पर रखा हुआ था टेबल के पास में, टेबल के जहाँ पर वो बैठता था। डोर के पास टेबल थी जहाँ पर वो बैठता था, वहीं पे उसने चेन को रखा हुआ था। तो जैसे ही वो एंटर होगा और वो वहाँ पर बैठेगा तो उसको चेन मिल जाएगी। Then she heard he stepped on the stairs away down on the first flight and she turned white for just a moment. तो जैसे ही उसने उसके पैरों की आवाज़ सुनी स्टेयर्स पे आने की, वो क्या थी, वो एकदम क्या थी, शॉक्ड हो गई और मतलब उस अपने सरप्राइज के लिए एकदम प्रिपेयर हो गई। She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things and now she whispered, "Please God make him think I am still pretty." तो वो हमेशा यही विश करती थी कि प्लीज़ गॉड क्या है कि हमारे विचार जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनाओ। यही वो आज से प्रे करने लगी। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप इन एंड क्लोज इट। तो क्या है, जैसे ही डोर ओपन हुआ तो जिन के स्टेप जो थे, पैर अंदर बाहर की आवाज़ आने लगी कि जिन के स्टेप जो थे अंदर बाहर हो रहे थे। तो उससे क्या है, उसको आवाज़ आ गई कि लुक थिक एंड वेरी सीरियस। अभी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी क्योंकि उसको सरप्राइज देना था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। Poor fellow, he was only 22 and to be burdened with a family, he needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stepped inside the door, तो जैसे ही जिम दरवाजे के अंदर आने लगा, as immovable as a satyr at the scent of 12. His eyes were fixed on Leela and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. तो क्या है कि वो जैसे ही अंदर वो साउंड ने वेला का फेस देखा, उसके एक्सप्रेशन जो थे वो देखने वाले थे। For what anger, no surprise, no disapproval, nor honor, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. क्या है, उसके फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आए हुए थे उस टाइम पर। Lila wriggled off the table and went for him. Jim darling, she cried. वो भी कहने लगी, Jim darling, don't look at me that way. कि तुमने मुझे ठीक से अभी देखा नहीं। I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. तो क्या था कि उसने देखा कि उसके जिम ने उसको ध्यान से नहीं देखा, तो इससे वो रोने लगी कि तुमने मुझे ध्यान से नहीं देखा, तेरे बाल कट हो गए हैं और उनको बेच के मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लिया है क्योंकि क्रिसमस था और मैं तुम्हें प्रेजेंट दिए बिना नहीं रह सकती थी, तो मैंने अपने बाल बेच के तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंट खरीदा है क्रिसमस के लिए। आई ग्रो आउट अगेन, यू वॉन्ट माइंड विल यू? आई जस्ट हैड टू डू इट, माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट। क्या है कि मेरे बाल जो है जल्दी उग जाएंगे, लेकिन क्या तुमने ये एक बार में माइंड नहीं किया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? बट मेरे बाल जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें कटवा के तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट खरीद लिया। से मैरी क्रिसमस। अब क्या है कि वो से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। अब वो अपने भाई जिम को बोलती है कि क्या बोलते हैं मैरी क्रिसमस, उसको प्रेजेंट देती है, मैरी क्रिसमस बोलती है और कहती है कि हमेशा खुश रहो। तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रेजेंट दिया उससे जिन को,
अपने बाल कटवाती है, उसने जो उसको प्रेजेंट दिया, यानी जो गिफ्ट था वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसने बाल कटवाए थे उसके लिए, वो उसके लिए बहुत मैटर करती थी। तो उसने उसको क्रिसमस में बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया कि उसने अपने बाल कटवा दिए उसके लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए। यू डोंट नो व्हाट ए नाइस एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट आई हैव बोथ फॉर यू। तो क्या है कि वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए अच्छा है या फिर सुंदर है कि नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम इसे अब ले सकते हो। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आज जिन। अब जिन ने पूछा कि तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं, तुम्हारे बाल कट गए हैं। Nervously, as if he had not arrived at that patient's fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Dela. Dela ने कहा कि मैंने कटवा दिया और उनको बेच दिया। Don't you like me just as well? Anyhow, I am me without my hair and not. क्या है कि मैं मेरे क्या तुम मुझे ऐसे पसंद नहीं कर सकती? वो कहती है कि क्या मेरे बाल नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ऐसे पसंद नहीं हूँ? मेरे बाल नहीं है लेकिन मैं तो वही हूँ, यानी बाल रहे हैं न रहे लेकिन मैं तो आज भी वही हूँ। Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone, he said. उसने कहा कि क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए? With an air almost of idiocy. You need not look for it, said Dela. वो क्या है कि तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे ऐसे देखने की। It's sold, वो बेच दिए हैं। I'll tell you, sold and gone to it's Christmas Eve, boy. तो उसने कहा ये Christmas Eve है, इसीलिए मैंने ये सब किया। Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with a sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. तो उसे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी जो है मेरे प्यार को तुम्हारे लिए काउंट नहीं कर सकता है कि मैं तुमसे प्यार कितना करती हूँ। उसके लिए क्या है कि जो मैंने किया वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ही कम है और मेरे बाल तो फिर से आ जाएंगे। तो उसका जो प्यार है उसके प्रति वो उसके लिए वो भी बहुत कम है। Shall I put the chops on Jim? Out of his trance, Jim seemed quickly to wait. He unfolded his Dela for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some inconsequent object in the other direction. $8 a week of or $1 million a year. What is the difference? तो क्या है कि $8 एक वीक में एक, तो इसमें मतलब क्या डिफरेंस था? या तो एक वीक में $8 या फिर $1 मिलियन एक साल में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The magic brought valuable gifts. तो मैजी ने क्या था, एक वैल्यूएबल गिफ्ट दिया था अपने जिनको, but that was not among them. His dark assertions will be illuminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. I don't think there's anything in the way of haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. तो क्या था कि अब वो उसके लिए महंगे उसके लिए जो पैकेट लेके आया था, उसके लिए महंगे शैम्पू, महंगे फॉर्म, ये सब उसके लिए हेयर्स के प्रोडक्ट लेके आया था, लेकिन अब वो उसके किसी भी काम के नहीं थे क्योंकि उसके बाल, उसके लंबे सुंदर बाल जो थे वो कट चुके थे। बट इफ यू विल unwrap the package, you may see while you had me going a violet first. White fingers and nimble tore at the string and paper, and then a static scream of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all and comforting powers of the Lord of the Flag. For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Della and had whispered for long in a Broadway window. तो क्या है,
इसके लिए क्या थे कंगे, एक कंगों का सेट, साइड वाले और पीछे वाले कंगों का सेट। और डेला तो थी वो खिड़की के बाहर देखकर, इन सब चीजों को देखकर, अपनी जहाँ पर वो उन्हें रखती थी उनको देखकर बहुत ही परेशान हो गई थी। ब्यूटीफुल कोल्स, प्योर टॉर्टोइशियल्स विद जेल ड्रीम, जस्ट द शेड ऑफ वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिश हेयर। लेकिन ये सब बेकार थे क्योंकि इसके पास उसके सुंदर बाल ही नहीं रहे। They were expensive homes, she knew, and her heart and simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the truth is that should have adored the coveted adornments were gone. But she hugged them to her bosom at length she was able to look up with deep eyes and smile and say, "My hair grows as fast Jim." से कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरे बाल जो है बहुत ही जल्दी तेजी से बढ़ते हैं जिम। तो इन सबको देखकर तुम अपनी आंखें नम मत करो, तुम परेशान मत हो। And then Della lived up like a little साइन कैट एंड क्राइड ओ ओ। अब इसके बाद ये सब देखकर डेला जो थी एक बिल्ली की भांति रोने लगी, बिल्ली की तरह रो रो से ओ करके। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। वो क्यों रोई? क्योंकि जिम ने अभी तक उसका ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देखा है जिसके लिए उसने अपने बाल कटवाए। शी हैंडेड आउट टू हिम eagerly upon her palm. The dull precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit. Is not it dandyism? I hunted all over town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. तो उससे कहा कि तुम अपनी वॉच दिखाओ मुझे, दो मुझे, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसी दिखती है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. Then said he, उसे डेला से कहा, let's put our Christmas present away and keep and while there are too nice to use just a present. अब से कहा कि अब हम अपने जो क्रिसमस के प्रेजेंट है वो सभी प्रेजेंट्स को रखते हैं, देखते हैं। I sold the watch to get the money to buy your clothes. अब क्या था कि जिन ने भी क्या किया, उसने उसकी जो वॉच थी उसने अपनी वॉच बेच दी उसके लिए, फॉर्म खरीदने के लिए, डेला के लिए सुंदर फॉर्म खरीदने के लिए, सेंसेस फॉर्म खरीदने के लिए उसने अपनी वॉच बेच दी। तो क्या था, डेला ने अपने बाल बेच दिए थे जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए, और जिम ने क्या किया, अपने जो वॉच थी जो से बहुत प्यारी थी उसने वॉच सेल कर दी थी डेला के लिए फॉर्म खरीदने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स होम। क्या है कि ये एक दोनों ने एक दूसरे के लिए क्रिसमस पर बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। द मेजी एज यू नो वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन, वो बॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैनेजर। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। तो ये क्या है, ये क्रिसमस के प्रेजेंट को क्या है इन्वेंट कर रही थी, इसने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए दोनों ने एक दूसरे के लिए। तो उससे क्या है, उनके जो क्रिसमस प्रेजेंट जो थे वो और भी ज़्यादा क्रिसमस की शाम को महका रहे थे। Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their home. क्या है कि इस घर में दो बच्चे थे जिन्होंने क्या है अपने अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके एक दूसरे के लिए गिफ्ट प्रेजेंट खरीदा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए को खुश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्रिसमस एप पर वो एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रेजेंट करे। तो जो भी दोनों के पास कीमती कीमती चीज़ें थी उन्होंने उन दोनों को सेल करा और एक दूसरे के लिए प्रेजेंट खरीदा। तो ये क्या था, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली गिफ्ट था। दोनों ने एक दूसरे के लिए इतना अच्छा सोचा और क्या है इतनी सुंदर प्रेजेंट लिए। बट इन लास्ट वर्ड to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. तो ये क्या है, ये इन दोनों ने की सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम लगा
कि दोनों ने बहुत ही बुद्धिमानी से एक दूसरे को गिफ्ट दिए और एक दूसरे के लिए अपनी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया। तो क्या है कि दोनों बच्चे बहुत ही बुद्धिमान थे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये गिफ्ट देखकर उनके बीच लव और अफेक्शन दिखाई देता है। They received the most noble, the most precious gift of love, which demanded sacrifice for each other. They are the Magi. तो क्या है, यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे से के लिए रिस्पेक्ट थी और दोनों के जो बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट थे उसमें उनका प्यार, उनका एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट दिखाई दे रहा था और इसी के लिए उन्होंने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ पर ये जो है यही एक मैजिक है। मैजिक क्या है कि यहाँ पर क्रिसमस एव में दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। तो दोनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को बेचते हैं। तो बेला ने अपने बाल बेचे थे अपने भाई जिन के लिए प्रेजेंट लेने के लिए, और जिन ने क्या किया, अपनी वॉच सेल कर दी थी बेला के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, सेक्रीफाइस, ये सब देखने को मिला है। स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।